हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है टी सेल और बी सेल। ये टी सेल और बी सेल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता ही है कि सेल्स का मतलब कोशिका होती है। तो कोशिका में जो है ये कैसे क्रिया करते हैं, कैसे इनका प्रोसेसिंग होता है और क्या मैकेनिज्म होता है, तो इसके विषय में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे और जानेंगे। द वन नेक्स्ट टॉपिक इज सेल्स ऑफ ह्यूमन सिस्टम। फ्रेंड, हियर सेल्स and human system, there is the most important cells of human system. The lymphocytes are the cells of the human system. There are lymphocyte is a cell of the human system. There are two major types of lymphocytes, T cell and B cell. The both revolve in the bone marrow. Friend, the T cell and B cell is developed by the bone marrow. Their formation of the bone marrow is T cell and B cell. Here show the difference between T cell and B cell. There is a most important for the exam view. There is a T cell is a mature thymus gland, but B cell is a mature lymphoid tissue like a tonsils and appendix. And there is a second is a T cells is the identify of antigen. Friend, here T cell identify the antigen. On the other side, the B cell is recognize antigen with the help of a surface receptor. And their third is the attack or directly. And here B cell produce a large number of antibodies for attack. And the other side is the lifespan is up to 3 to the 4 years. The T cells is their lifespan up to 3 to 4 years, but B cell is the antibodies are short lived. There is a most important for here. A person may be lack T cells or B cell or both. Such a person are highly prone to be an infection. There is a main of the B and T cell for the human body. When here immunodeficiency disorder, there is a immunodeficiency disorder mean IDD means immunodeficiency disorder. There is a hereditary congestion by the birth or acquired defect in immune response is called to the immunodeficiency disorder. From here, the SCID and AIDS means AIDS are two common examples such a disorder. There are T cells and B cell disorder is SCID and AIDS are the two common example for this disorder. The SCID means to the full form SERV combined immunodeficiency syndrome. This is the most important for the exam view is a full form of SCID. The SERV combined immunodeficiency syndrome is a causing due to their absence of both T cell and B cell. This infected to the person from a birth. There is a defected on person there a birth, and second is a AIDS mean acquired immunodeficiency syndrome. The examiner asked the question of full form for the AIDS mean acquired immunodeficiency syndrome. The causing considerable of reduction in a T cell. Here, reduction of a T cell and ultimate destruction of the immune system. It is a causing by the HIV. There is a HIV full form is human immunovirus. There is a HIV's full form is human immunovirus. You should now know. There is the AIDS may be causing by, there is a AIDS causing by a sexual contact with a person infected with the HIV, and second is the blood transfusion from a HIV infected person, and third is a sharing of the contaminated needles with the HIV suffering or drugs addictions, and fourth is from infected mother to the fetus through the placenta. There is a most important spirit of AIDS. There is AIDS is the very dangerous disease. The one time is there a long time on the life. There is a spread by the sexual contact with a person infected with the HIV and blood transfusion for the HIV infected person. And other is the contaminated needles and drugs addiction. Also for the reason of spread of causing a HIV AIDS. There are other is a mother to the fetus through the placenta. So is the most important for the exam view.
दोस्तों यहाँ पर जो है अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक आ गया है प्रतिरक्षा तंत्र की कोशिका। देखिए हमारे शरीर में जो प्रतिरक्षा तंत्र होती है यानी इम्यूनिटी होती है, आपको पता है कि एक्टिव और पासिव टाइप्स की होती है, जो कि बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर रखती है। ठीक है, ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट भी रहता है। कहते हैं यह प्रतिरक्षा तंत्र जो होता है लसकाणु प्रतिरक्षा तंत्र की कोशिका होती है। लसकाणु का जो है प्रमुख रूप से दो प्रकार के होते हैं, टी कोशिका और बी कोशिकाएं। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो टी कोशिका और बी कोशिका है हमारे शरीर में बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका रोल होता है। ये दोनों ही प्रकार की कोशिकाएं जो है अस्थि मज्जा यानी जो है हमारा बोन मैरो में उत्पन्न होते हैं। तो ये याद रखना कि टी और बी सेल जो होते हैं दोस्तों ये दोनों जो है आपके बोन मैरो में ये उत्पन्न होती हैं और बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ अपना स्थान रखते हैं। अब यहाँ पर जो है आपके समक्ष आता है कि बी कोशिका और टी कोशिका में क्या अंतर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम व्यू से। एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आया है और बच्चों ने जो है इसमें अच्छे मार्क्स भी प्राप्त किए हैं। ठीक है, तो आप भी बहुत आसान है, इसको याद कर लेना कि टी कोशिका जो होती है थाइमस ग्रंथि में प्रवृत्त होती है यानी थायराइड ग्रंथि में जो है ये उत्पन्न होती है। और बी कोशिकाएं जो दोस्तों होती है वो लसकाव अंगों में जैसे ट्रालोपेरिफेशिका में प्रवृत्त और एम्पोडेनिक्स में होते हैं। तो ये थोड़ा सा हिंदी के वर्ड थोड़ा टफ है, तो आप इंग्लिश में जो है बहुत ईजिली आप याद कर सकते हो। ये कोशिकाएं जो है प्रतिजाणों को पहचान कर उन्हें नष्ट कर देती है। यानी जो टी कोशिकाएं होती है हमारे शरीर में कोई भी प्रतिजन यानी कोई भी अनवांछित चीज़ प्रवेश करती है तो टी जो कोशिकाएं हैं उसको स्वयं ही नष्ट कर देती है। और बी कोशिका जो होती है एंटीजनों की पहचान अपनी सतह पर गायी अंगों के द्वारा कर लेती है। यानी बी कोशिका भी जो होती है अपने एंटीजनों की पहचान करती है। कहते हैं अपने का पहचान होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर अपनों की पहचान आप नहीं कर पाओगे तो जीवन में जो है हमेशा धोखा ही खाते रहोगे। ऐसा ही तो होता है जब HIV के वायरस हमारे अंदर प्रवेश करता है, वो क्या करता है हमें धोखा देता है, हमारे एंटीबॉडी और एंटीजेन्स को धोखा दे के जो है वो अपना वहाँ पर दबदबा बना लेता है। तभी जो है एड्स जैसे बीमारी से हमें जो है छुटकारा नहीं मिल पाती है। कहते हैं तीसरा पॉइंट यही कहता है कि सीधे आक्रमण करती है। टी कोशिका जो है डायरेक्ट आमने सामने अटैक करती है। बी कोशिका जो होती है आक्रमण के लिए बड़ी संख्या में प्रतिपिंडों उत्पन्न करती है। ये भी जो होता है जो है दुश्मन से लड़ने के लिए जो है प्रतिपिंड उत्पन्न करती है यानी एंटीबॉडी जो है ये उत्पन्न करती है जिससे जो दुश्मन बॉडी में प्रवेश किए हैं उसको नष्ट किया जा सके। ठीक है, यहाँ पर जो है टी कोशिका जो होती है इसके जीवन काल जो होती है कम से कम 3 से 4 वर्ष तक जिंदा रहती है हमारे शरीर में। लेकिन जो प्रतिपिंड थोड़ी ही समय तक रहती है उसके बाद ये स्वयं ही नष्ट हो जाती है। तो देखिए यहाँ पर जो है एंटीबॉडी थोड़ी ही समय तक रहती है और फिर जो है ये नष्ट हो जाती है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर रहता है। कहते हैं किसी भी व्यक्ति में टी कोशिका या बी कोशिका अथवा दोनों ही कोशिकाएं मौजूद नहीं होती है। देखिए किसी व्यक्ति में टी कोशिका या बी कोशिका अथवा दोनों ही कोशिकाएं मौजूद नहीं होती है, यानी ये होती भी है और नहीं भी होती है। तो ये याद रखना, होता तो है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसे व्यक्ति में संक्रमण होने की संभावना अधिक हो जाती है। जब आपके पास टी कोशिका और बी कोशिका नहीं होगा तो याद रखना कि संक्रमण की क्षमता जो होती है काफ़ी बढ़ जाती है। तो ऐसे व्यक्ति को संक्रमण से बचाना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है और बहुत ही कठिन भी होता है। कहते हैं प्रतिरक्षा जो है न्यूनतम से संबंधित विकार। देखिए प्रतिरक्षा तंत्र से जो बीमारी होती है वो कौन सी होती है। कहते हैं प्रतिरक्षा जो है अनुक्रिया में होने वाले दोष चाहे वो वंशागत हो चाहे जन्मजात हो फिर भी अर्जित हो या प्रतिरक्षा न्यूनतम विकार कहलाता है। देखिए जो प्रतिरक्षा न्यूनतम होती है वो सिर्फ से कारण ये बनती है या तो वो जन्मजात हो सकता है, बचपन से आपको न मिला हो, या हो सकता है कि आपके वंशज में यानी किसी को इस चीज़ की कमी रहा हो, वही गुण जो है आपके अंदर ट्रांसफ़र हो गया हो। तो ये दो ही प्रकार से मिल सकते हैं, या तो आप कोई दोष से ग्रसित हो चाहे वो वंशागत हो या जन्मजात हो। कहते हैं इस प्रकार के विकार के दो सामान्य उदाहरण हमारे समक्ष है। पता ही आपको कि SCID होता है और दूसरा जो है एड्स होता है। ठीक है, एड्स तो आपको पता ही है कि ये जो है लाइलाज बीमारी जो कि यहीं से भी ट्रांसफ़र होकर हमारे बॉडी में प्रवेश कर जाता है। ठीक है, या इसके कई कारण है जो हम आगे पढ़ेंगे भी, लेकिन SCID जो है आनुवंशिकता से संबंधित रोग है। यानी इसको हम कहते हैं SCID का जो फुल फॉर्म होता है जो कि एग्ज़ाम व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है किसी भी क्लास के बच्चों के लिए। तो इसका अर्थ होता है सर्व कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी। ठीक है, इम्यूनोडेफिशिएंसी यानी सर्व कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी जो यहाँ पर जो है आपको बनाता है, जिसमें टी कोशिका तथा बी कोशिका दोनों ही के न होने से पैदा होता है और ये विकार जन्मजात होती है। यानी ये जो होती है SCID जो दोस्तों होती है ये जन्मजात होती है।
यानी टी कोशिका बी कोशिका दोनों ही नहीं होती है। तो आप समझ सकते हो कि व्यक्ति को कितने तरह के संक्रमण का खतरा बना रहता है। कुछ भी होता है तो संक्रमित व्यक्ति जो है बहुत सडनली हो जाता है। उसके पश्चात एड्स है। एड्स तो आपको पता ही है, इसके बारे में आपने पढ़ा ही है कि एड्स को जो है उपसर्जित प्रतिरक्षा न्यूनतम संरक्षण कहते हैं, यानी उपसर्जित प्रतिरक्षा तंत्र न्यूनतम संरक्षण कहलाता है हिंदी में, और वही इंग्लिश में आप जानोगे तो इसको कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, और इसमें जो है वायरस कौन होता है? HIV। इसको ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस के नाम से जाना जाता है, यानी ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस अर्थात मानव प्रतिरक्षा न्यूनतम विषाणु। तो आप हिंदी में भी याद कर सकते हो, इसको कहते हैं मानव प्रतिरक्षा न्यूनतम विषाणु के द्वारा टी कोशिका की संख्या में भारी कमी आ जाती है। अंततः प्रतिरक्षा तंत्र जो होती है यहाँ पर नष्ट हो जाती है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, HIV एड्स जो होती है कई कारणों से फैलती है। क्या आपको ये बात पता है कि एड्स क्या कारण हो सकते हैं? देखिए, किसी HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ यौन संपर्क से यानी शारीरिक संबंध बनाओगे तो इससे जो है एड्स होने की चांसेस बढ़ जाता है। लेकिन ये तब बढ़ता है जब दूसरा व्यक्ति जो हो HIV एड्स कंटामिनेट हो, यानी उसको एड्स पहले से हो रखा हो। तो इस कंडीशन में जो है यौन संपर्क होती है तो इससे जो होगा, इससे HIV संक्रमण बढ़ जाता है। दूसरा जो है HIV ग्रस्त व्यक्ति के लिए जो है रक्तदान। देखिए दोस्तों, अगर कोई HIV व्यक्ति है और उसने रक्तदान किया है, अगर वही रक्त जो है दूसरे में ट्रांसफ़र किया जाता है गलती से, तो उसको भी एड्स होने की चांसेस बन सकता है। ठीक है, तो ये भी जो है आपको पता है कि HIV ग्रस्त व्यक्तियों के लिए जो है रक्तदान नहीं करने की बात कही जाती है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है HIV पीड़ित अथवा नशा करने वाले जैसे मादक द्रव्य व्यवसायी के साथ संदूषित जो है सुई का एक दूसरे के द्वारा इस्तेमाल किया गया। आपको पता है जो आजकल जो लोग नशे करते हैं वो एक ही सुई का इंजेक्शन का उपयोग करते हैं, उसमें ड्रग्स भर लेते हैं और वो भी इंजेक्शन लगा लेते हैं, वो भी लगा लेते हैं। तो इससे एड्स बढ़ने की चांसेस 100% रहती है, क्योंकि उसका ब्लड जो है, आपको पता है कि सुई में ब्लड लग जाती है, फिर दूसरा व्यक्ति भी यूज़ करता है तो उसको भी ब्लड जला जाता है, तो ब्लड संपर्क हो जाता है। ठीक है, कभी कभी जो होता है डॉक्टर आजकल जो करते हैं, आप कभी डिस्पेंसरी या कहीं भी जाओ तो देखो कि जो व्यक्ति है आपके सामने ही उस रैपर को फाड़े, यानी इंजेक्शन के रैपर को फाड़े, क्योंकि कभी कभी डॉक्टर जो होते हैं वो भी कभी गलती कर जाते हैं कि जो कंटामिनेट सुई होता है उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं होता है, मैक्सिमम देखा गया है, लेकिन बाई चांस कहते हैं ना, हो भी जाता है, क्योंकि आज की दुनिया जो है एक जैसा नहीं है, हर कोई सही नहीं होता है। तो ये आपके लिए बहुत जिम्मेवारी बन जाता है कि आप किसी डॉक्टर के पास इंजेक्शन लगवाने जाओ या आप ग्लूकोज चढ़ाता है तो देखो कि वो कंटामिनेट सुई तो नहीं यूज़ कर रहा है, ठीक है, या कभी यूज़ किया हुआ कुछ यूज़ तो नहीं कर रहा है, या रैपर से फटा हुआ तो नहीं यूज़ कर रहा है। तो ये सब आपको जागना ज़रूरी है, नहीं तो आप इस बीमारी के शिकार हो जाओगे। जब एक बार आप इस बीमारी का शिकार हो जाओगे तो आपको ये बीमारी जो है लाइफ टाइम आपका जीवन जो है नष्ट कर देगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात रहता है, तो इसलिए आपको जो है जागरूक होना अत्यंत यहाँ पर महत्वपूर्ण रखता है। चौथी बात जो है फैलने का जो है संक्रमित माँ से अपरा के द्वारा गर्भावस्था शिशु में पहुँचना। आपको पता है अगर माँ जो है HIV एड्स से पीड़ित है तो हो सकता है कि जो प्लेजेंटा है वो उसको अवशोषित कर ले और वो बच्चों को भी जाने की चांसेस बढ़ जाता है। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से तिरपान स्टडी सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप तिरपान लिखिएगा तो जो है वो तिरपस कर देगा। ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च करेंगे तिरपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्जाम खत्म हो जाने के मेरा क्या जरूरत है तिरपान स्टडी सेंटर से, ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, तिरपान स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th +2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफ़ी जो है तिरपान स्टडी सेंटर का फायदा ही फायदा है। ठीक है, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फायदा पहुंचाएगा। एग्जाम के तौर पे मैं आपको जो है
पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूंगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना। बाय।